Hello and welcome to Gensign Civil Services Academy. Today in this session we are going to look into the very significance of this day, of this very day, that is 1st May 2026, International Labour's Day, or you can say it International Workers Day. So दो आर्टिकल आए थे एडिटोरियल्स, वन इन द असम ट्रिब्यून एंड अनदर इन द हिंदू न्यूज़पेपर. सो उन दोनों आर्टिकल से जो जिस्ट है, जो एक्साप्ट है, जो आर्टिकल एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं, ओके, सो विल ट्राई टू डिकोड दैट इन दिस सेशन. सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी what are those two articles or the editorials of today. So this session would be going to be important for GS1 world history, okay, and Indian society perspective. From this perspective it will be going to be important, and GS2 governance and social justice perspective, and GS3 economy perspective also, because the worker or the labor, as you can say, are very much integral part of our economy. Okay, so and it is very much important for your upcoming APSC prelims as well as your UPSC prelims. Okay, so let's see what are these two articles that we are going to decode today. On May Day, a workforce in India without a flaw, discussed on, that came up on the Hindu newspaper, and May Day history and significance on in the Assam Tribune newspaper. So let's see. So first of all, the significance of this International Workers Day or International Labour's Day, क्या है significance, हम लोग देखते हैं. So जैसे कि हम लोग सबको पता ही है कि May 1st every year it is known as May Day और International Workers Day. ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड. ओके, इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर्स डे बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ILO स्पेसिफिकली टू से. सो टू ऑनर और टू गिव रेस्पेक्ट टू द वर्कर्स ऑफ सोसाइटी, ओके, लेबर्स ऑफ इन द सोसाइटी. So to honor workers' contribution in economic development, society as well as economic development, and recognize labor's rights and dignity. As we all know that in India, the Article 21 of the Indian Constitution ensures right to life and personal liberty. Here it talks about the dignified life for all. So it recognizes labor's rights and dignity on 1st May, International Labour's Day, May Day or International Workers Day. As we all know that labor is the backbone of society and development, right? Okay, so after that we jump into the very historical significance, okay, or the historical background of how this Labour's Day or International Workers Day or the May Day got originated. Okay, so पहले 1st May को क्या मना, 1st May को किस हिसाब से देखा जाता था यार, या क्या बोल के मनाया जाता था? So initially it was celebrated in Europe as a spring festival. Okay, 1st May was celebrated in Europe as a spring festival, okay, in the month of May, and named after Greek goddess Maya, that is the fertility symbol. मतलब the agricultural prosperity and fertility of the land, उसको ऑनर करने के लिए, उसके रेस्पेक्ट में Maya, Greek goddess, right, it was celebrated in Europe as a spring festival, just like Bihu in Assam, right? So that's the very background, historical background. Then came the industrial context. Karl Marx, as we all know, right, the industrial revolution, then capitalism versus socialism, right? So then came the industrial context.
Okay, these all things we all discuss in the foundation batches in the Indian economic classes, right? In the PSI or optional classes, right? So we see that in the industrial context during early capitalism in the especially in the USA, workers को फोर्स किया जाता था 12 से 16 घंटे काम करने के लिए, right? So but wages were very poor, very little wages, and in harsh conditions. Just imagine the plight, just imagine the situation of the laborers, right? The workers at that time, especially in USA, not only in USA as well as all over the world. No labor rights were identified or the protection to the laborers as well, जो आजकल हमें दिखते हैं in the various labor codes, those were not available at that time. Okay, okay, so let's see what I brought you in the next slide for you. Okay, okay, फिर क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ यूएसए में, शिकागो मूवमेंट. वो इंसिडेंट टर्न हुआ एक मूवमेंट में, हे मार्केट इंसिडेंट. वहां पे एक जगह थी हे मार्केट नाम से. सो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे वर्कर्स क्या किए, डिमांड करने लगे कि 8 आवर ही वॉक होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए. ओके, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग राइट इन द हे मार्केट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हे मार्केट इंसिडेंट. ओके, सो यूएसए के शिकागो में 1 मई 1886 को, याद रखिएगा, इट कुड बी ए वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स. ओके, so in 1 May 1886 in Chicago, USA, there was a demand by the workers or the laborers for 8-hour work day. क्योंकि 12 से 16 घंटे पॉसिबल नहीं होता है, राइट? इसके पीछे लॉजिक है कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो, राइट? So that is a scientific logic, right? And what was the outcome of this protest? Okay, first of all, participation of around 5 lakh workers was there in this Haymarket incident, right? Chicago, USA में, Chicago में around 5 lakh workers came to protest. They demanded 8 hours work day, right? And what was the outcome? क्या किया? Obviously जब workers protest करने आएंगे तो सरकार क्या करेगी? The government would do what? The army, the police would do what? They would try to suppress, right? So there was the violent suppression by the government and many workers were jailed and executed. Okay, but it provided this particular incidents on 1st May 1886, the Haymarket incident or the Chicago movement. This became a global symbol of labor struggle. So ये बन गया global symbol, लेबर स्ट्रगल का ग्लोबल सिंबल, एंड इट लेड टू वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ऑफ लेबर राइट्स, राइट? द लेबर्स, दे आर आल्सो ह्यूमंस, राइट? सो वी ह्यूमंस, वी टॉक, वी वाउच, ओके, फॉर ह्यूमन राइट्स. सो व्हाट अबाउट देम? दे आल्सो हैव राइट्स, राइट? हाउ मे डे बिकम ग्लोबल आफ्टर दिस इंसिडेंट्स? इन 1889, पहले 1886, फिर 1889 में क्या हुई? सेकेंड इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड May 1 एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे. सो इसी इंसिडेंट के बाद 1886 के बाद 1889 पर क्या हुई? सेकेंड इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट वर्कर्स जो थे उनका एक यूनियन टाइप आप बोल सकते हो, राइट? इंटरनेशनली या फिर कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो. सो सेकेंड इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड May 1 एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग 1st May in 1889 एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे? टू ऑनर द Haymarket मार्टियर्स. इस Haymarket मार्टियर्स में ये ठहरा Haymarket मार्टियर्स, राइट? और यहां पे थे Haymarket मार्टियर्स. सो इनके ऑनर के लिए सेकेंड इंटरनेशनल ने 1889 में
May 1 को इंटरनेशनल वर्कर्स डे डिक्लेयर कर दिया। एंड टू प्रोमोट 8-hour वर्क सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे 8-hour वर्क सिस्टम डिमांड की गई थी। फिर ये क्या हुई, मूवमेंट ग्लोबली स्प्रेड हो गई इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ओके, लेट्स सी द अनदर स्लाइड। ओके, सो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या है। जैसे कि लिखा गया है कि कम्युनिस्ट द शिकागो मूवमेंट 1886 began when workers protested for an 8-hour workday, showing the harsh exploitation under early industrial capitalism। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है, आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म का डिफरेंस। ओके, सो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर टू इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हो आप। मेनली इकोनॉमिक डोमेन में अगर हम लोग देखें तो कैपिटलिज्म प्रोवाइड्स फॉर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, मतलब प्राइवेट ओनर्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब हम प्राइवेटली बिजनेस कर सकते हैं, वी मे बी द ओनर्स ऑफ बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज। बट इन सोशलिज्म में क्या होती है, एक ऐसा इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम आप बोल सकते हो जहां पे द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस, ओके, ऑफ ए नेशन, ऑफ ए कंट्री इज द गवर्नमेंट। ओके, देयर विल बी नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज सोशलिज्म। ठीक है, सो this struggle inspired the idea that workers across countries must unite for their rights. Building on this, Vladimir Lenin formed a Communist International 1919 to create a global network of workers and communist parties to fight capitalism. So, यह सोशलिज्म की शुरुआत हम लोग को जैसे कि मालूम है कि यूएसएसआर, राइट, फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, राइट, रशिया का पहले वाला नाम, राइट, या रशिया को क्या बोला जाता था पहले, यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन। नॉट ओनली रशिया, अदर नेशंस, नियर बाय नेशंस वेर आल्सो इंक्लूडेड इन सोवियत यूनियन। ओके, ओके, सो बेसिकली दिस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स they conducted the first international conference in from this time period, that is 1864 to 1876. It is known as the first international, okay, the union of the communists. Okay, the leader was, इस टाइम पे लीडर कौन थे, कार्ल मार्क्स, and the objective was clear to unite workers globally and focus was on workers rights and shorter working hours. But अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। ओके, और सोशलिज्म में भी अलग अलग कैटेगरी हुए, लेयर्स हुए। सो देयर वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड ये मूवमेंट कोलैप्स हो गई। ओके, फिर आया सेकेंड इंटरनेशनल, ये भी एक यूनियन, कम्युनिस्ट का, वर्कर्स का यूनियन ही समझ लीजिए। 1889 से 1916 तक ये मूवमेंट या यूनियन चली। ओके, सो इसी टाइम पे May 1 वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर्स डे। ओके, 1889। द लीडर वाज फ्रेडरिच एंजल्स। व्हाट वाज द रोल ऑफ सेकंड इंटरनेशनल? It promoted socialism. Okay, the government ownership of resources, state-led socialism. Established May Day 1889. Okay, but outcome क्या हुआ? It was split during World War I again. फिर उसके बाद आती है थर्ड इंटरनेशनल। ओके, इसको बोला जाता है कमिंटर्न। ओके, इट वाज फाउंडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। फिर व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे लीडर हुए इस पार्टिकुलर वर्कर्स यूनियन के, वर्ल्ड वाइड वर्कर्स यूनियन। ओके, फ्रॉम 1919 to 1943 इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड कम्युनिज्म ग्लोबली, राइट। एंड इसका आउटकम भी डिजॉल्व्ड बाय जोसेफ स्टालिन। फिर जो लेनिन के बाद जो आए स्टालिन। ओके, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर II डिप्लोमेसी इट वाज कमिंटर्न वाज अगेन डिजॉल्व्ड। वर्कर्स के राइट्स के लिए ये सब
किया जा रहा था, बट अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के डिप्लोमेसी के तहत इसको जोसेफ स्टालिन ने डिसॉल्व कर दिया, राइट। वर्कर्स राइट्स मूवमेंट वाज अगेन क्या हुआ, डाइल्यूटेड, राइट। देन अगेन केम द फोर्थ इंटरनेशनल 1938 से प्रेजेंट डे तक। इसको किसने फाउंड किया, इसके लीडर कौन थे, लियोन ट्रोट्स्की, ओके। बट इट जैसे तैसे इट एग्जिस्ट्स, जैसे कि आज भी इंडिया में इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है। देखते हैं इंटरनेशनल लेबर्स डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे इंडिया में कैसे शुरू हुई, राइट, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी, ओके। ओके, सो अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर्स डे या वर्कर्स डे इंडिया में कैसे शुरू हुई। हाउ डिड इट स्टार्ट इन इंडिया? So early labor movement in India began with railway workers in Howrah, West Bengal, right? Which was initially weak due to poor organization. इतना वर्कर्स के बीच में या फिर लेबर्स के बीच में इतना एक यूनिटी नहीं थी, राइट। पोर ऑर्गेनाइजेशन वाज देयर। कोई एक ट्रेड यूनियन बोलो, कोई एक राइट वर्कर्स यूनियन बोलिए या फिर लेबर यूनियन बोलिए, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी या फिर अगर थी भी तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ड्यू टू पोर ऑर्गेनाइजेशन इट वाज वेरी वीक, बट इट बिगेन इन हावड़ा with railway workers, right? Then there was the formation of All India Trade Union Congress in 1920. ये आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन में, right? So All India Trade Union Congress in 1920 it was formed, which led to organized labor movement in India. So यहां से organized labor movement इंडिया में शुरू होती है, राइट। एंड इंडिया में पहली बार 1923 में इंटरनेशनल लेबर्स डे 1 मई को सेलिब्रेट हुई थी। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इन मद्रास, चेन्नई, ओके। सो ये याद रखने की बात है कि फर्स्ट सेलिब्रेशन इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर 1923 इन मद्रास, चेन्नई by Labor Kisan Party of Hindustan, and its leader was Malayapuram Singaravelu Chettiar, okay, and its demand was to declare May 1 as a national holiday. तो तब से May 1st has been declared as national holiday 1923। याद रखिएगा, मद्रास, चेन्नई by Labor Kisan Party of Hindustan, whose leader was Malayapuram Singaravelu Chettiar. So ये याद रखिएगा, it could be a very much highly probable question in your prelims, upcoming prelims, okay. So after that May 1st was declared as national holiday. फिर ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट हुई वैसे ही 1928 में बॉम्बे में, 1929 में कानपुर टेक्सटाइल मूवमेंट, राइट। एंड फ्रॉम 1934 ऑनवर्ड्स मे डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, राइट। पहले यहां से शुरू हुई, फिर 1934 से पैन इंडिया में स्प्रेड हो गई। 1934 से स्पेशली अगर बोले तो 1923 वाज द इनिशियल बिगिनिंग एंड 1934 से पैन इंडिया चली गई। पहले मद्रास से शुरू हुई, फिर पैन इंडिया द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ इतना सब हम लोग ने तो देख लिया अभी, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, लेबर्स डे, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द प्लाइट ऑफ लेबर्स इन इंडिया, ओके। आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी इनटू द लेबर कोड्स, ओके। वी विल सी देयर व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड। 20 लेबर कोड्स थे, फिर 4 हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए, नेगेटिव चेंजेस क्या हुए, वो सब हम लोग अभी देखेंगे, ओके। सो लेबर कंडीशंस इन इंडिया, सो इसको समझने के लिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में 2 केस स्टडीज हैं, रियल केस स्टडीज, रिसेंटली हैपेंड, रिसेंटली ओकर्ड इन, वन इन नोएडा एंड अनदर वन इन, लेट्स सी फर्स्ट, पहले नोएडा का देख लेते हैं, फिर दूसरा वाला देखेंगे, ओके। सो नोएडा में क्या हुआ, इन द नोएडा देयर वाज द गारमेंट वर्कर्स, मतलब कपड़ों के गारमेंट वर्कर्स, दे प्रोटेस्टेड इन अप्रैल 2026, लास्ट मंथ, okay.
बिफोर द प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट हुई क्यों, राइट? सो देखिए, गारमेंट वर्कर्स इन नोएडा वाज अर्निंग अराउंड ₹435 पर डे, बट इन नियर बाय हरियाणा, दूसरे स्टेट में नियर बाय हरियाणा, ओके, वर्कर्स डूइंग सिमिलर वर्क वर अर्निंग अराउंड 585 पर डे. सो एक स्टेट में 435 पर डे, बट साइड वाले नेबरिंग स्टेट में 585 per day. So this created resentment, right, among the workers of Noida, the garment workers of Noida, right? So on April 9th, 2026, the Haryana government increased minimum wages by 35%. Okay. Again, the Haryana government ने और इंक्रीज भी कर दिया 35%, राइट? दिस क्रिएटेड एंगर अमॉन्ग नोएडा वर्कर्स बिकॉज दे वर अर्निंग मच लेस फॉर सिमिलर वर्क. पहले से हरियाणा में ज्यादा ही थी और ज्यादा हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ा दी. फिर नोएडा के गारमेंट वर्कर्स जो थे, ओके, टेक्सटाइल वर्कर्स, सो उनके अंदर रिजेंटमेंट क्रिएट हुई. दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग बिकॉज हम लोग की सरकार ने तो नहीं बढ़ाई, नेबरिंग स्टेट की सरकार तो अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ा रही है, राइट? सो इट वाज अनफेयर फॉर देम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, राइट? द वर्कर्स डिमांडेड ए मिनिमम वेज ऑफ ₹20,000 पर मंथ. ओके, सो यहाँ पे 11,274 से 15,220 चली गई थी हरियाणा में. सो नोएडा के भी, उत्तर प्रदेश नोएडा के भी वर्कर्स ने क्या किया कि 20,000 पर मंथ हम लोग को भी मिलनी चाहिए, ऐसा डिमांड रखा. Okay, in April 2026, workers from around 300 garment factories came out in protest. So ये जब सरकार नहीं मानी, so in April 2026, workers from around 300 garment factories came out in protest for this, right? They gathered on the streets, blocked roads and demanded a written assurance from the authorities that our wages, हमारे जो वेतन है, हमारी जो सैलरी है, right, वो बढ़नी चाहिए. ओके, टू कंट्रोल द सिचुएशन द एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयड मोर देन 1,200 सिक्योरिटी पर्सनल्स. ओके, द प्रोटेस्ट टर्न्ड टेंस लीडिंग टू लाठी चार्ज, टीयर गैस यूज एंड स्टोन पेल्टिंग, राइट? सो अराउंड 400 पीपल वर डिटेन्ड बाय द पुलिस. दिस इज द प्लाइट ऑफ लेबर्स इन इंडिया. सो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग को दिखाया गया है ये कि व्हाट्स द plight of labor in India. Okay. After pressure, the Uttar Pradesh government announced an interim 21% wage hike, but the government bowed down in front of the protest of the workers and it announced 21% wage hike, right? The revised wage became 13,690 per month for unskilled workers and 16,868 per month for skilled workers. The workers rejected this hike because their demand, उनका डिमांड कितना था पहले से ही, 20,000 rupees per month. Okay. Okay. So this is the case 1, case study 1, जो कि हम लोग को एडिटोरियल में देखने को मिलती है. And what's the other case story about the laborers, plight of laborers in India? Okay, condition of laborers in India. सिंघीतराई इंडस्ट्रियल डिजास्टर अप्रैल 2026. ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुई एक इंसिडेंट है जो कि अप्रैल 2026 में ही हुई है, राइट? जस्ट बिफोर दिस फर्स्ट में. ओके, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट बेरंता थर्मल पावर प्लांट इन सिंघीतराई, छत्तीसगढ़. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन, दर्दनाक इंसिडेंट हुई. ओके, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट which led to taking lives of many workers. Okay, 20 workers they died. Okay, क्या हुआ था, एक स्टीम बॉयलर एक्सप्लोजन हुई थी inside the plant which released extremely hot steam of around 600 degrees Celsius. Just imagine the situation. Okay, the accident caused heavy casualties. 20 workers were dead and 15 workers were injured. The main cause was reported as excess fuel buildup inside the furnace. Okay, so इसकी वजह से एक्सेस फ्यूल बिल्डअप इनसाइड द फर्नेस होने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर सर्ज हुआ, राइट? प्रेशर बढ़ गया एंड द प्रेशर डैमेज क्रिटिकल पाइप्स एंड दैट लेड टू
steam boiler explosion, and 20 workers were dead and 15 were injured. Okay, legal FIR was also filed. Okay, but इससे क्या ही होने वाला है, मेन इशू क्या था कि key point is that the workers who died were contract workers, not permanent employees of Vedanta. यहां पे आ गया सारा खेल. अभी जो मरे हैं, जो इंजर्ड हैं, उनका कंपेंसेशन का क्या, राइट, उनके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, सो उसका क्या, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, राइट. दैट्स द प्लाइट ऑफ लेबर्स, दैट्स द प्लाइट ऑफ वर्कर्स इन इंडिया. ये आर्टिकल उसको हाईलाइट करती है, एडिटोरियल उसको हाईलाइट करती है. ओके, सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर लेबर इशू, दैट इज ग्रोइंग कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर, where companies depend more on contract workers who often have weaker job security and safety protection. Okay, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हाईलाइट होती है इस इंसिडेंट से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उनका जॉब सिक्योरिटी हालांकि नहीं होती है, या फिर अगर होती भी है तो बहुत वीक होती है. ओके, सो गवर्नमेंट शुड look into it. Government should bring policies in that area, in that sector, right? Okay, so अभी कुछ डाटा जो कि ये दो केस स्टडीज भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट. पहले जो हम लोग ने डिस्कस किया, that chronology that is important from your world history perspective, okay, and prelims perspective, right. अभी जो केस स्टडी से हम लोग ने देखा, ये आप लोग के मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, इवन यू कैन यूज यहां से रेफरेंस लेके यू कैन यूज इट इन जीएस पेपर फॉर एथिक्स इंटेग्रिटी. ओके, इन दैट पेपर आल्सो यू कैन यूज इन द एथिक्स पेपर. ओके, यू कैन यूज इट इवन इन एसेज. ओके, इन द जीएस पेपर 2, राइट, सोशल जस्टिस, राइट. ओके, सो लेबर सेफ्टी सिनेरियो इन इंडिया. छत्तीसगढ़ में ये कुछ डाटाज हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन हाईलाइट इन मेंस. ओके, 296 इंडस्ट्रियल डेथ्स इन लास्ट 3 years. So that's a very important data you could use in mains, you can use in mains. Okay, और ओवरऑल इंडिया का जो देखें अगर हम 2018 से 2020 तक अराउंड 3,331 फैक्ट्री डेथ्स हैव ओकर्ड. ओके, मतलब इन अगर हम लोग पर डे के हिसाब से इसको अगर तोड़ें तो 3 deaths पर डे, जस्ट इमेजिन. ओके, एंड ओनली 14 convictions. अकाउंटेबिलिटी 0. डेथ्स 3,331 and in the from 2018 to 2020, and out of that how many convictions, कितनों को जिम्मेदार ठहराया गया उनके डेथ्स के लिए? Only 14 convictions, right. And 2024 का अगर हम लोग देखें डाटा, 400 plus workplace deaths have occurred. Okay, this is the industrial data, industrial. Okay, 400 plus workplace deaths only in 2024, right. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख लीजिएगा. फिर अभी आते हैं अभी लेबर रिफॉर्म्स पे. सो इंडिया के हम लोग के यहाँ पे इंडिया पे पहले कितने थे? देयर वेर 29 डिफरेंट लेबर लॉज, राइट. थोड़ी देर पहले आई गेस मेरे मुंह से 20 निकल गया था, इट्स 29. ओके, सॉरी फॉर दैट. 29 लेबर लॉज. दीज वेर वेरी कॉम्प्लेक्स, ओवरलैपिंग एंड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 29 लेबर लॉज को क्या किया, कॉन्क्रीट करके सिर्फ 4 लेबर लॉज पे लेके आए. ओके, सो द गवर्नमेंट कंबाइंड देम इनटू 4 सिंपल लेबर कोड्स 2020 and it was implemented in around November 2025-26. इसी एरिना में ये लेबर लॉज 4 लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो गए. ओके, तो ये 4 लेबर कोड्स अभी जो हैं हम लोग के very much important from your prelims perspective, UPSC prelims as well as APSC prelims perspective as well as mains perspective. Okay, so what are the 4 labor codes? Code on wages,
ये डिस्कस करती है मिनिमम वेज कितना देना है, फ्लोर वेज, राइट, फॉर ऑल वर्कर्स एंड इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, ये भी. Now you all in the comment, whoever is live watching me live, you all can mention what which article of DPSP. ठीक है, मैंने ये भी बोल दिया कि DPSP में इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन की बात की गई है. कौन सा आर्टिकल DPSP का ये पर्टिकुलर सेक्शन को दर्शाता है या फिर ये मेंशन है इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, कौन से आर्टिकल पे लिखा गया है, काइंडली कमेंट. ओके, मिनिमम वेज की बात करता है. ओके, एंड इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, कोड ऑन वेजेस, दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, रूल्स फॉर ले ऑफ्स, राइट, ले ऑफ मतलब निकाल देना, रिट्रेंचमेंट एंड स्ट्राइक्स, जो कि लेबर स्ट्राइक्स होते हैं, वो सारे रूल्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में लिखे गए हैं. ओके, मिलेंगे आपको. एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, इट इंक्लूड्स PF, प्रोविडेंट फंड, pension and insurance, right? And OSHWC code, occupational safety, health and working conditions, right? Very much important because ये चौथा वाला अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो जैसे आप लोग देखते हैं रास्ते पे द वर्कर्स वर वर्किंग, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल गियर्स लगाते हैं, सेफ्टी गियर्स, राइट, कुछ जैकेट जैसा कुछ लगाते हैं, हेलमेट्स लगाते हैं, बूट्स लगाते हैं, राइट, ऑल दोस थिंग्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, एंड अबाउट देयर सेफ्टी, हेल्थ कंडीशंस, राइट, एंड वर्किंग कंडीशंस. आज बारिश दे रही है, आज तेज धूप है, तो आज थोड़ी जल्दी छुट्टी होगी आप सबकी. सो राइट, लाइक दिस थिंग्स. ओके, OSHWC, बाकी तो समझ में आता है पढ़ने से, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने रिलेट करने के लिए आपको एग्जाम्पल दे दिया. तो देखते हैं अभी क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, राइट. की चेंजेस मेड, अर्लियर हायरिंग, अभी यहाँ पे कंटेस्टेंट है, बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. चेंजेस क्या हुए हैं, 29 labor laws were there, they were brought down into 4 labor codes. So what all changes were made? Easier hiring and firing कर दी गई है. पहले क्या थी hiring and firing rule? Government approval was needed if company has 100+ workers. Now limit increased to 300 workers. मतलब अभी 300 से कम वर्कर्स किसी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होगी हायरिंग या फायरिंग के लिए. फायरिंग के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए. यू कैन इजीली फायर एनीवन, राइट. सो वर्कर्स राइट हैव बीन डाइल्यूटेड हियर. स्मॉलर फैक्ट्रीज एक्सक्लूडेड. नाउ अर्लियर पहले क्या थी, सेफ्टी लॉ अप्लाइड टू 10 वर्कर्स विथ पावर, नाउ इंक्रीज टू 20 वर्कर्स विथ पावर एंड 40 वर्कर्स विदाउट पावर. सो अभी देखिए, स्मॉलर फैक्ट्रीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेफ्टी लॉ. पहले थी सेफ्टी लॉ अप्लाइड टू 10 वर्कर्स विथ पावर, नाउ इंक्रीज टू 20 वर्कर्स विथ पावर. मतलब अभी 20 वर्कर्स हैं तभी सेफ्टी लॉ आप अप्लाई करो, 10 वर्कर्स हैं तो नहीं, राइट. सो यहाँ पे वर्कर्स के सेफ्टी के साथ ऐसा क्रिटिसिज्म है कि खिलवाड़ किया गया है, राइट. देन अनदर चेंज, इंस्पेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो चेंज्ड. पहले क्या होते थे, सरप्राइज इंस्पेक्शंस बाय ऑफिसर्स, नाउ ऑनलाइन रैंडम इंस्पेक्शंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय कंपनीज. कंपनीज अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं, राइट. सो ये तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, उनके हाथ में है, राइट. एंड अनदर चेंज, स्ट्राइक रूल्स मेड टफ. स्ट्राइक रूल्स को और टफ बना दिया गया है. वर्कर्स मस्ट गिव 60 days नोटिस. पहले ही आपको अगर स्ट्राइक करना है, आज कुछ एक चलिए प्रॉब्लम हुई, कुछ एक मामला हुआ, राइट, कुछ एक वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ एक डिस्प्यूट हुआ, चलो वेजेस को लेके ही या फिर वर्कर्स के सेफ्टी को लेके ही. सो एक बार्गेनिंग पावर होती है ना कलेक्टिविटी में. सो सारे वर्कर्स एक साथ आ गए, बैठे स्ट्राइक धरने पे बैठ गए कि हम लोग की ये सेफ्टी के लिए आप लोग मेजर्स लीजिए, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे, राइट.
सो 60 डे पहले आपको नोटिस देना है. सो ये तो 60 डे में पता नहीं कितने और वर्कर्स मर जाएं, राइट? सो दैट्स ए बिग कंटेस्टेंट देयर. No sudden strikes are allowed now, and even mass leave are also counted as strike. Mass leave, जो कि mass bunking करते हैं आप लोग, हम लोग करते थे कॉलेजेस में, राइट? So mass bunking, mass leave, this is also counted as strike. सोचो जरा. And gig workers, ये थोड़ी सी पॉजिटिव चेंज है, right? Gig workers are included in they are eligible for social security schemes. New workers there which are covered are delivery boys, app based drivers, right? Uber, Rapido, these delivery boys of Zomato, Swiggy, right? All are covered and gig workers are covered in social security schemes. This is a positive change. ये होनी चाहिए, ये welcome है, okay? This is a welcoming step, right? फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने, जैसा कि हम लोग को पता चला कि 29 जो लेबर लॉज थे, राइट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, राइट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे टू इंटरप्रेट, राइट, एंड देयर वाज आल्सो दे वर वेरी एम्बिगियस आल्सो. सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म लाया. फिर भी यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया है, व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लेबर रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई मेनी लेबर लॉज इनटू फ्यूअर कोड्स, to reduce legal confusion for workers, employers and officials, right? To make rules clear, uniform and easier to follow, right? To improve ease of doing business, okay? To attract more domestic and foreign investment, to encourage industries to expand production, okay? To help create more employment opportunities, to make labor laws suitable for the modern economy, and to reduce unnecessary paperwork and compliance burden, and to balance worker welfare and industrial growth. So these all are the reasons that the government says that we have brought changes in the labor laws, we have brought labor reforms. Okay, so अभी देखते हैं कि इन लेबर रिफॉर्म्स के क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं और क्या नेगेटिव साइड्स हैं, राइट? सो लेट्स सी what all are the positive sides and what all are the negative sides of the labor laws. So पहले देखते हैं positive sides. One nation, one labor system, right? This could be directly this you can directly write in the mains exam as a point, right? One nation, one labor system, same rules across state, uniformity and consistency will remain. Easier for companies to operate, less complexity. लॉज अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो कंपनीज को ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट? ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स आएंगे, ओके? दोज ऑल कुड बी ओवरकम बिकॉज देयर विल बी लेस कॉम्प्लेक्सिटी. फास्टर डिसीजन मेकिंग वुड बी देयर एंड एक्सपांशन ऑफ द कंपनीज वुड बी इजियर, ओके? Gig workers are recognized. Platform workers get legal identity and social security scope. Better clarity in wage rules. Clear definition of wages, bonus, minimum pay, and formalization of labor market. More workers come under official records and legal protection. Right? So these all are the positive sides of labor reforms that you could directly produce in your mains examination if a question appears. Okay. So अभी पॉजिटिव देख लिया तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव भी देखना पड़ेगा, राइट? और नेगेटिव तो हम लोग ने देख ही चुके हैं, कितने सारे नेगेटिव्स हैं, क्रिटिसिजम्स हैं, राइट? देयर आर क्रिटिसिजम्स, राइट? एंड द क्रिटिसिजम्स आर should be constructive criticisms, right? Negative side of labor reforms. Job security have been reduced. जैसे कि हम लोग ने देखा कि companies with fewer than 300 workers can retrench workers more easily. वो लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली फायर कर सकते हैं, नए को हायर कर सकते हैं, राइट? इंडस्ट्रियल सेफ्टी में वीकन. मेनी स्मॉल फैक्ट्रीज में गो आउट ऑफ स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉ कवरेज. जैसे कि हम लोग ने देखा कि 10 से
20 लाया गया था विथ पावर, राइट, एंड वर्कर्स बार्गेनिंग पावर इज रिड्यूस्ड, हैव बीन रिड्यूस्ड, ये क्रिटिसिज्म है। स्ट्रिक्टर स्ट्राइक रूल्स मेक कलेक्टिव प्रोटेस्ट मोर डिफिकल्ट, जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 60 डे प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी आपको। सो कैसे स्ट्राइक करेंगे वर्कर्स, कैसे स्ट्राइक करेंगे लेबर्स, राइट, फॉर देयर राइट्स, ओके। एनफोर्समेंट बिकम्स वेरी वीक, सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स कंपनीज रिपोर्ट कंप्लायंस themselves। सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंपनी को अपने आप सेल्फ सर्टिफाई करना है। व्हाट डज दैट मीन, राइट। ट्रेड यूनियंस कंसर्न, क्या है ट्रेड यूनियन का कंसर्न, रिफॉर्म्स आर सीन एज प्रो एम्प्लॉयर नॉट सफिशिएंटली प्रो वर्कर, राइट। रिफॉर्म्स जो आए हैं 29 से लाके 4 में बदले गए हैं, they are mainly seen as pro employer, मतलब एम्प्लॉयर के सपोर्ट में है, एंड नॉट सफिशिएंटली प्रो वर्कर। सो दैट्स द मेन क्रिटिसिज्म बाय ट्रेड यूनियन, ओके, ट्रेड यूनियंस, ठीक है। सो यहाँ पे आप कैसा कंक्लूजन एक लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि रिफॉर्म शुड बैलेंस बिजनेस ग्रोथ विथ वर्कर्स डिग्निटी। सो एक लाइन है, इसी के बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। बट द थिंग इज रिफॉर्म शुड बैलेंस बिजनेस ग्रोथ अलोंग विथ वर्कर्स डिग्निटी। सो डिग्निटी ऑफ द वर्कर्स शुड नॉट बी हार्म, राइट। जैसे कि इमानुएल कांट हैव ऑलरेडी सेड दैट ह्यूमन डिग्निटी इज कैटेगोरिकल imperative, very very important, it is ensured by article 21 of Indian Constitution, right? So that's all for today we have brought, right? फिर ऐसे सेशंस हम लोग हाई इंटेंसिटी हाई वैल्यू एडेड सेशंस हम लोग लेके आते रहेंगे, ओके। एंड वेरी सून वी आर अनाउंसिंग आवर फाउंडेशन बैच फ्रॉम 11th May, admissions are going on. So for any details regarding the foundation batch, you could contact in that number given below, okay. So thank you all, thank you very much.